if you want to buy books, then you can go through this. Okay, so this book you can take NCERT mathematics. Okay, so it is available in market, and also if any students get problem to buy this book, then also I will provide this PDF after at the time of class. I will provide PDF. So every unit when we will start, before that we will provide PDF of this book. Okay, so this book PDF also I will provide you. You can solve the problem from here. Okay, so let's start our unit 4. Okay, so now first I will start principle of mathematical induction. So it's very easy, and those who have those students have already advanced mathematics, they can easily understand all these things. But those students did not have advanced mathematics in class 10 level, they also easily understand, because we will start from basic. And those who have advanced mathematics, they also can lot of things they have to know, because they know how to solve the problem, but they don't know what is the meaning of that. Okay, so we will start with the meaning. So let's see mathematical principle of mathematical induction. Okay, so this is our unit 4. Okay, your introduction given, so I will not go with this. You will read once. Maybe you can, if you want to know about the history of induction, you can go with this. Okay, so now first, what is induction? Okay, we know that inductive, what is inductive procedure? Okay, so from that word this came in, we can think about mathematical induction. Just like you'll see so many formulas we have to prove, but how we prove that the mathematical induction is one of the method to prove some formulas. Just like one example I will show you. Suppose 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 plus n. Okay, this is called sum of first natural number. We know natural number means 1 2 3 4 5 6 dot dot dot. These are called natural number. Okay, and 0 is not a natural number. Negative numbers are also not natural number. Natural numbers are starting from 1 2 3 4 dot 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 up to it's going to infinity. So we have taken 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to dot 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 n. Okay, n is any number. Okay, any natural number. Okay, so now if I want to find the sum of this number, okay, अगर ये जो दिखाई दे रहे हैं नंबर 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n, इसका अगर हम लोग को प्लस करना है, सपोज इसका सम निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला है कि इसका सम करने से इसका वैल्यू कितना आएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ओके, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. सो जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार. फर्स्ट दो नंबर मैं ले लेता हूँ. ये दो नंबर क्या है, 1 प्लस 2. 1 प्लस 2 कितना होगा, 3. ओके, सो अभी जो राइट साइड में जो ये टर्म लिखा है मैंने, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है, मैं इसको एक बार वेरीफाई करके दिखा देता हूँ. इसमें हम लोग कितना टर्म लिया, इसमें देखो नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 4 अप टू n तक है, इसलिए हम लोग इस राइट साइड में ये n लिखा है. ठीक है, ये n जो है ये नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना नंबर ऑफ टर्म है. ओके, दैट मीन्स ইয়াত কিমানটা টার্ম আছে, ইয়াত nটা টার্ম আছে. সো এইকাৰণে আমি ইয়াক n বুলি লৈছোঁ, আৰু ৰাইট সাইডটো n ইনটু n প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 2. ओके, सो नाउ ইয়াত मैं কি কৰিছোঁ, ফার্স্ট দুটা টার্ম লৈছোঁ. ओके, फार्स्ट दोनों टर्म मैंने लिया है हमें 1 and 2. सो 1 plus 2 is what, 3. सो नाउ ইয়াত কিমান টার্ম আছে, দুটা টার্ম আছে. সো n ৰ ভ্যালু কি হ'ব এতিয়া, 2 হ'ব. তো রাইট সাইডত আমাৰ কি আছে, n ইনটু n প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 2. ইয়াত n ৰ ভ্যালু আমি, n মানে নাম্বাৰ অফ টাৰ্ম, এই n মানে কি হয়, নাম্বাৰ অফ টাৰ্ম মানে কিমানটা টাৰ্ম আছে. সো ইয়াত আমি কিমানটা টাৰ্ম ললোঁ, দুটা টাৰ্ম ললোঁ. ओके, सो n ৰ ভ্যালু আমি ইয়াত 2 লওঁ. চাও কি আহে,
ओके। इफ अगर यहाँ में n का वैल्यू 2 लिया तो ये आएगा 2 इंटू 2+1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो नाउ भी देखो दिस कैंसिल। ओके, सो नाउ व्हाट यू विल गेट 2+1 इज 3। ओके, देखो इसमें 3 आया था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी 3 आया। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग 3 टर्म लिया, ये तीनों टर्म का सम किया कितना आएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो ये तीनों टर्म का सम करने से 6 आएगा। ठीक है, तो कितना टर्म लिया 3 टर्म्स। अगर राइट साइड में n का जगह में 3 पुट किया तो सेम आना चाहिए। ओके, राइट साइड में अगर n का जगह में 3 पुट किया तो सेम आना चाहिए। तो n का जगह में 3 पुट करके देखो कितना आएगा। n का जगह में अगर हम लोग 3 पुट किया n इंटू n इंटू n+1, n का वैल्यू 3 लिया बिकॉज 3 टर्म को लिया यहाँ में 3 टर्म लिया 1 2 3 डिवाइडेड बाई कितना है 2, तो ये 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना आएगा 3 + 1 इज 4 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2, कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 6। ओके, देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेफ्ट साइड में ये तीनों का प्लस करने से 6 आया, राइट साइड में ये n का जगह में 3 पुट कर दो तो ये 6 आएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट इसका ये फॉर्मूला है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब जितना नेचुरल नंबर का सम करोगे वो टर्म को m में अगर n का वैल्यू में पुट कर दिया तो वो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि पहला 2 नंबर को हम लोग सम किया था तो कितना आया था 3, तो इसमें कितना नंबर का सम किया था 2, तो n का जगह में 2 पुट कर दिया तो 3 आया। सिमिलरली 3 नंबर का सम किया तो 6 आया। ठीक है, और कितना टर्म था यहाँ में 1 2 3 टर्म था तो n का वैल्यू 3 लिया तो यहाँ में 6 आया। सिमिलरली अगर 4 टर्म है तो यहाँ में n का वैल्यू 4 होगा, n टर्म के लिए n होगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये तो मैं जस्ट एक्सप्लेन किया। अभी इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ऐसे तो प्रूफ नहीं होगा, ये तो एक एक करके देख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट दोनों को लिया, लेफ्ट साइड में पुट किया तो 3 आया, राइट साइड में भी पुट किया तो 3 आया। ये तो एक ट्रिक का जैसा हो गया, गेम का तरह लग रहा है कि फर्स्ट दोनों नंबर को प्लस किया तो यहाँ में 3 आया, राइट साइड में भी n का वैल्यू 2 पुट कर दिया तो सेम आ रहा है 3 आ रहा है। फिर 3 नंबर को लिया, तीनों नंबर का सम करने से 6 आ रहा है, फिर ये 3 को यहाँ में पुट किया क्योंकि 3 नंबर है तो इसलिए 3 पुट किया तो ये 6 आया। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग एक एग्जाम्पल लेके तो दिखा पा रहा है कि ये करेक्ट है, लेकिन इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो ऐसे टाइप का कुछ फॉर्मूलाज है जिसको प्रूफ करने के लिए ये मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ होता है। ओके, नाउ इसका कैसा कर अभी इसका जो फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला मैथमेटिकल इंडक्शन का जो फॉर्मूला है, सो फर्स्ट एक बार मैं मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रॉपर्टी है उसको मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन दिस दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, सो लेट्स सी। Okay, first we will see the property of mathematical induction. This is the property of mathematical induction. This is you have to remember. One second. Okay, so let's see the property. Okay, what is given here, you see the principle of mathematical induction. Okay, so now main statement is that there is a given statement Pn. Okay, Pn means statement और statement means mathematical statement। जिस टाइप का जो इक्वेशंस होता है जैसे कि 1 प्लस, मैंने अभी जो लिखा था 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस टाइप का जो फॉर्मूलाज है इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो ये जो है ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि इसका जो मीनिंग है क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो ऐसे टाइप का एक्सप्रेशन को हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। तो ये हमें जो Pn जो है, Pn क्या कर रहा है, इस टाइप के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस टाइप के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू n। दिस टाइप का एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा को नॉट ओनली लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों को ये Pn बोल के हम लोग यहाँ में लिख सकते हैं। इसका वैल्यू इट इज इक्वल टू Pn, मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो ये जो है ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। सो ऐसा टाइप का बहुत सारा फॉर्मूलाज है, याद रखने का जरूरत नहीं, कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, ये हम लोग को बाद में मिलेगा। तो अभी जस्ट हम लोग इस टाइप को प्रूफ करना है जस्ट। ठीक है, ये इसका लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, ये कैसे आया, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी है। सो लेट्स सी। सो ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सो ना सी सपोज Pn जो है एक स्टेटमेंट है, कोई एक मतलब प्रॉब्लम जो मैंने अभी भी लिखा था, ये जो लिखा था ये है Pn। तो ऐसे टाइप का कोई एक फॉर्मूला है
जिसको हम लोग Pn नाम दिया, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, मैंने यहाँ में जो लिखा है इसी ओनली ये 1 + 2 + 3 नहीं, 1² + 2² + 3 इसका ऐसा भी हो सकता है, बाकी क्यूब भी हो सकता है। तो ऐसा टाइप का कोई भी एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोल दिया कि Pn मतलब एनी स्टेटमेंट, कोई एक स्टेटमेंट है, तो इस टाइप का कोई भी फॉर्मूला को हम लोग स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ओके, ना सी क्या बोला है, द गिवन स्टेटमेंट Pn इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n सच दैट, इसमें n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर मालूम है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 ये सब। ओके, सच दैट मतलब कि ये एक स्टेटमेंट है और वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सा कंडीशन? नंबर 1 क्या है, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1 और दैट इज P1 इज ट्रू। मतलब n का वैल्यू अगर हम लोग 1 लिया, ये जो स्टेटमेंट मिला था Pn = हम लोग को जो इक्वेशन मिला था, इसमें ये जो 1 + 2 + 3 ऐसा करके जो स्टेटमेंट मिला था, इसमें n का वैल्यू अगर हम लोग 1 लिया तो ये लेफ्ट साइड और इक्वल टू राइट साइड में क्या मिला था, n × n + 1 / 2। तो n का वैल्यू अगर 1 लिया तो दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होना चाहिए। ओके, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। ओके, देन उसको हम लोग बोलते हैं P1 इज ट्रू। ओके, P1 मतलब ये n का वैल्यू यहाँ में 1 पुट कर दिया तो ये P1 बन गया, ठीक है। n का वैल्यू अगर 2 पुट कर दिया तो ये P2 बनेगा। तो इसमें स्टेटमेंट में बोला है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1 दैट इज P1 इज ट्रू। ओके, एंड नंबर 2, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k then the statement is also true for n = k + 1। ओके, अगर n का वैल्यू हम लोग n = k के लिए ट्रू है तो ये n = k + 1 के लिए भी ट्रू होगा। दैट इज द ट्रूथ ऑफ pk इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ pk + 1, ठीक है। तो इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग को, मुझे मालूम है। तो लेट्स सी, अभी इसके लिए कुछ एग्जाम्पल चाहिए, देख लो। ये एग्जाम्पल से समझना होगा इसको, ठीक है। यहाँ में देख लो, हमें बहुत सारा बुक्स है, ये हमें दिखाई दे रहा है। ये सपोज एक लाइब्रेरी का बुक्स, लाइब्रेरी देखा है, लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक है, तो यहाँ में बहुत सारा बुक है एक साथ में, ठीक है। तो अभी देख लो, अगर लाइब्रेरी में जो बुक जो स्टैंड करके रखा होता है, बहुत सारा बुक ऐसा करके स्टैंड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक बुक है, ये सारा बुक है, डिफरेंट बुक्स। तो अगर फर्स्ट बुक को हम लोग अगर गिरा दिया, ठीक है, सपोज हम लोग फोर्स किया तो फर्स्ट बुक क्या हो गया, फेल डाउन हो गया, मतलब फर्स्ट बुक जो है वो गिर गया, ठीक है। तो अगर कोई भी लाइब्रेरी का जो सेल्फ है उसमें अगर बहुत सारा बुक है स्टैंड किया हुआ, तो उसमें से पहले वाला बुक का अगर हम लोग गिरा दिया तो क्या हो जाएगा, हम लोग को दिखाई दे रहा है कि अगर फर्स्ट वाला बुक गिरा दिया तो ये सेकंड वाला बुक भी उसके ऊपर डिपेंड करके ये भी गिरेगा, उसके साथ लग के ये भी गिरेगा, इसके साथ लग के ये भी गिरेगा। तो ऐसा करके एक 1 by 1 गिरते क्या होगा, जो लास्ट वाला बुक है वो भी गिरेगा। तो ऐसे ही, क्योंकि फर्स्ट वाला क्योंकि सब एक साथ में लगा हुआ है। सिमिलरली तुम साइकिल स्टैंड में भी देख सकते हो, कॉलेज में बाई स्कूल में देखा है बहुत सारा साइकिल स्टैंड, बहुत सारा साइकिल ऐसा स्टैंड में बहुत सारा साइकिल ऐसा करके बहुत सारा साइकिल 1 by 1 ऐसा करके खड़ा करके रखता है। तो एक साइकिल अगर गिर गया, फर्स्ट साइकिल अगर गिर गया तो उसके साथ साथ बाकी वाला साइकिल भी गिरते जाएगा, ठीक है। तो इसी जो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन, इंडक्टिव मतलब 1 by 1 जो होता रहता है। तो उसका ऊपर बेस करके ये लॉ बना है कि देख लो, हम लोग कब बोल सकते हैं कि इसमें सब जितना भी बुक है, मैंने जब भी बोला कि फर्स्ट बुक अगर गिर गया तो बाकी सारा बुक गिर जाएगा, बट इसको हम लोग कैसे बोल पाएगा, तो उसके लिए इसमें जो कंडीशन है देख लो। अगर फर्स्ट बुक मैंने बोला कि लास्ट वाला भी गिर सकता है, ठीक है। तो देख लो, इसका ऊपर बेस करके हम लोग एक प्रॉपर्टी बनाया जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अगर फर्स्ट जो बुक है अगर ये गिर गया तो इसका ऊपर डिपेंड करके बाकी सारा बुक भी गिरेगा, ठीक है। तो सपोज ये जो बुक है इसका नाम मैंने के दे दिया, ठीक है, इसको मैंने के दे दिया। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 बुक है, तो ये नंबर के बुक है। के कोई एक नंबर है, ठीक है, 100 200 पर कोई एक, उसका मतलब ये 3 और के बीच में, 4 और के बीच में बहुत सारा बुक है, ठीक है। सपोज अभी अगर फर्स्ट बुक अगर गिर गया तो ऐसा करके गिरता जाएगा। तो ये जो के बुक है, के नंबर में जो बुक रखा हुआ है, ये लास्ट ये जो है ये k+1 वाला बुक है, ठीक है। ये अगर k है तो ये k+1, उससे एक ज़्यादा नंबर है इसमें, क्योंकि ये 3 है, देखो 3 है, 3 से 1 ज़्यादा 4 है, जैसे कि 2 है, 2 से 1 ज़्यादा 3 है, 3 से 1 ज़्यादा 4 है। सिमिलरली ये अगर k है तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, k के साथ 1 प्लस कर दो तो k+4, जैसे कि सब में 1 1 इंक्रीज होकर जा रहा है, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, ऐसा करके, ठीक है। तो ये जो k नंबर बुक है ये अगर गिर गया, सपोज हम लोग कंसिडर कर ले कि ये गिर गया, ठीक है, हम लोग अगर कंसिडर कर ले कि ये गिर गया तो के नंबर जो बुक है ये अगर गिर गया तो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट बुक है वो तो गिरेगा ही, क्योंकि इसके ऊपर टच करके ये गिरेगा ऑब्वियसली, ठीक है। बट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर
फर्स्ट क्या करना है हम लोग को, ये जो प्रोसेस है फर्स्ट हम लोग को शो करना है कि फर्स्ट बुक गिर गया, ठीक है। फर्स्ट हम लोग को शो करना है कि फर्स्ट बुक गिर गया, कि अगर फर्स्ट बुक गिर गया तो ऑब्वियसली उसके बाद वाला बुक भी गिरेगा। और अगर दिखाना है कि सारा बुक गिर गया तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये जो है लास्ट वाला बुक से पहले जो है बुक के, इसको हम लोग पकड़ लेंगे के, हम लोग पकड़ा कोई एक बुक के है जो गिर गया, ठीक है। तो अगर ये गिर गया तो उसका नेक्स्ट वाला भी गिरेगा, ठीक है। तो अगर के गिर गया तो के का बाद जो बुक है वो भी गिरेगा। समझ में आने की नहीं, देखो के वाला जो बुक है ये अगर गिर गया, के वाला अगर बुक गिर गया तो उसके बाद वाला जो भी बुक है वो गिर जाएगा, ठीक है। तो इसका ऊपर बेस करके हम लोग बोल सकते हैं कि सारा बुक गिर गया, क्योंकि के जो मैंने लिया के एक अननोन है, के क्या है, एक अननोन है। के का वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब 1 2 तो है ही, 100 200 300 400, के एनी नंबर है। तो के लिए ट्रू है बोल के दिखा के हम लोग दिखा दिया कि उसके बाद वाला बुक भी, मतलब हम लोग कंसिडर करेगा कि के वाला बुक गिर गया, ठीक है। देख लो क्या करेगा हम लोग यहाँ में, फर्स्ट तो हम लोग का काम है कि दिखाना है कि फर्स्ट बुक गिर गया, मतलब पहले वाला जो बुक है वो गिर गया, ये दिखाना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे कि जो के वाला बुक है, रिमेंबर दैट ये हम लोग को दिखाना है कि ये गिर गया बोल के, मतलब 1 के लिए ये ट्रू है। फर्स्ट वाला अगर गिर गया मतलब 1 के लिए ये ट्रू है। तो अभी हम लोग को दिखाना है कि हम लोग सपोज कंसिडर कर लिया कि के वाला जो बुक है वो भी गिर गया, ठीक है। तो अगर के वाला बुक गिर गया तो हम लोग को अभी शो करना पड़ेगा कि के प्लस 1 वाला बुक भी गिरेगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि अगर के गिर गया तो ऑब्वियसली उसका नेक्स्ट वाला बुक भी तो गिरना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये नहीं गिरा तो मतलब ये भी फॉल्स हो जाएगा कि ये भी नहीं गिरा, क्योंकि ये अगर गिरा तो ऑब्वियसली ये तो गिरना ही पड़ेगा। अगर के गिर गया तो के प्लस 1 भी तो गिरना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे कि के वाला जो बुक है वो गिर गया बल्कि हम लोग ले लेंगे, और फिर हम लोग शो करेंगे कि के प्लस 1 वाला बुक भी गिरा है। कैसे शो करेंगे, ये इसका ऊपर डिपेंड करके, ठीक है। तो यही है इंडक्शन। तो इंडक्शन में जो अभी भी हम लोग प्रॉपर्टी देखा था, तो नंबर 1 देखो, नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या दिया था, P1 इज़ ट्रू, मतलब n के लिए ये ट्रू था, मतलब फर्स्ट वाला जो है ट्रू होना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट वाला बुक गिरना पड़ेगा। P1 इज़ ट्रू बोल के लिखा था, मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू होना पड़ेगा बोल के बोला था। तो इसलिए फर्स्ट वाला बुक तो गिरना ही पड़ेगा, बिकॉज हमें दिखाई दे रहा है कि अगर फर्स्ट वाला बुक ही नहीं गिरा तो बाकी वाला बुक तो गिरेगा ही नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स और जो स्टेटमेंट दिया है वो तो ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट हम लोग को शो करना पड़ेगा कि फर्स्ट वाला बुक गिरा है। मतलब अगर तुम साइकिल स्टैंड में भी देखोगे तो फर्स्ट वाला साइकिल तो गिरना पड़ेगा, तभी जाकर बाकी साइकिल गिरेगा। अगर फर्स्ट वाला साइकिल ही गिरा नहीं है तो बाकी वाला साइकिल कहाँ से गिरेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे फर्स्ट काम होगा कि हम लोग को n इज इक्वल टू 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट मैंने दिखाया था अभी, Pn एक इक्वेशन देगा, एक फॉर्मूला देगा कोई एक 1 + 2 + 3 ऐसा करके। तो उसमें फर्स्ट n का वैल्यू अगर 1 लिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसमें से हम लोग अगर ये P1 n के लिए ट्रू हो गया तो हम लोग बोल पाएगा कि फर्स्ट बुक गिर गया व फर्स्ट साइकिल गिर गया। तो अगर फर्स्ट वाला गिर गया तो ऑब्वियसली बाकी वाला भी गिरेगा, लेकिन कितना तक गिरेगा वो हम लोग यहाँ में प्रूफ करेगा कि अगर फर्स्ट वाला गिर गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई एक बुक है जो के नंबर में है, सपोज ये के नंबर वाला बुक जो है ये गिरेगा बोल के हम लोग बोल सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं लेट। क्योंकि अगर फर्स्ट वाला बुक ही गिरा नहीं तो बाकी वाला बुक गिरेगा ही नहीं, ये तो हम लोग 100% मालूम है। तो इसलिए अगर फर्स्ट वाला बुक गिर गया मतलब अगर P1 के लिए ट्रू है तो बाकी वाला भी ट्रू होने का चांसेस है। तो इसलिए हम लोग यहाँ में कंसिडर कर लिया कि लेट इट इज़ ट्रू फॉर के, ठीक है। तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि के वाला जो बुक है वो भी गिरेगा, ठीक है। तो अभी के वाला बुक अगर गिरा तो के बाद जो भी बुक है वो भी तो गिरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मालूम है कि साइकिल स्टैंड हो बाई या बुक अगर सेल्फ में रखा हुआ है तो एक गिरेगा तो उसका नेक्स्ट वाला भी तो गिरता है। तो अगर के ट्रू है हम लोग कंसिडर कर लेंगे के वाला बुक गिरेगा। तो अगर के वाला बुक गिरा तो ऑब्वियसली उसका नेक्स्ट वाला बुक भी गिरना पड़ेगा। तो अगर हम लोग दिखा पाया कि K+1 वाला जो बुक है वो गिर गया, देन हम लोग बोल सकते हैं कि हमें सारा बुक गिर गया, ओके। क्योंकि के जो है एक अननोन नंबर है, तो के लिए अगर ये ट्रू हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो मैं यहाँ में के लेट लिया था, मैं पकड़ लिया था कि के लिए ट्रू होगा बल्कि कंसिडर किया था, लेकिन इसको यूज़ करके हम लोग को शो करना पड़ेगा कि ये K+1 भी गिर गया। मतलब अगर ये स्टेटमेंट के लिए ट्रू है, मतलब ये जो स्टेटमेंट आएगा PK, फर्स्ट तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि 1 के लिए ये ट्रू है, ठीक है। तो 1 के लिए ट्रू है, अगर ये 1 के लिए ट्रू हो गया, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो गया, तो हम लोग यहाँ में n का जगह में k पुट करेगा। तो हम लोग कंसिडर कर लेगा कि ये के लिए भी ट्रू है, मतलब हम लोग कंसिडर कर लेगा कि के वाला जो साइकिल है
वो भी गिरेगा बोल के हम लोग कंसिडर कर लिया। हम लोग को मालूम नहीं है वो गिरा कि नहीं गिरा, बट हम लोग कंसिडर कर लेगा कि एज फास्ट वाला साइकिल गिरा तो ऑब्वियसली के नंबर वाला जो साइकिल है वो भी गिरेगा बोल के हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट वाला साइकिल गिरा तो ऑब्वियसली इसके साथ साथ बाकी वाला भी गिर सकता है, तो हम लोग कंसिडर कर लिया। लेकिन रिमेंबर दैट अगर फास्ट वाला ही गिरा नहीं तो बाकी वाला तो गिरेगा ही नहीं, तो इसलिए P1 मस्ट ट्रू होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब n का वैल्यू 1 लेने से ये इक्वल आना पड़ेगा लेफ्ट साइड राइट साइड, जो स्टेटमेंट मैं अभी एक करके दिखाऊंगा। तो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आना पड़ेगा। अगर इक्वल आ गया तो हम लोग के लिए जा सकते हैं, बट अगर 1 के लिए ट्रू नहीं है तब तो के लिए ट्रू होगा ही नहीं, तब तो हम लोग को प्रॉब्लम ये फर्स्ट स्टेप से हम लोग बोल सकते हैं कि एज ये 1 के लिए ट्रू नहीं है तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ट्रू होने के लिए लेफ्ट साइड राइट साइड किसी भी नंबर के लिए इक्वल होना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग 1 पुट करेगा, अगर 1 के लिए इक्वल आ गया तो हम लोग ले लेगा कि ये के लिए भी ट्रू है बोल के लिखेगा। तो P अंडर ब्रैकेट n के जगह में हम लोग के पुट करेगा और दोनों साइड को लिख देगा। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसका दोनों साइड को लिख देगा। फिर इसको यूज़ करके हम लोग k+1 को लिखेगा और प्रूव करेगा कि ये k+1 के लिए भी ट्रू है, बट यूजिंग दिस, ये जो pk है इसको हम लोग यूज़ करके pk+1 को, मतलब अगर k वाला बुक अगर गिर गया तो k+1 वाला बुक गिरेगा बोल के हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे वो मैं दिखाऊंगा अभी करके। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट है। अभी मैं एक बार तुमको स्टेटमेंट फिर से दिखा देता हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा स्टेटमेंट, देख लो। ये एकदम इजी है लेकिन समझने से, तो एडवांस मैथमेटिक्स वाला लोग भी ये किया हुआ है लेकिन उसको समझना पड़ेगा। मेनली अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तब वो करने में एक इंटरेस्ट आ जाएगा प्रॉब्लम में। ठीक है, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, मतलब फास्ट वाला साइकिल गिरना पड़ेगा, मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए, मतलब n का वैल्यू अगर हम लोग 1 लिया तो ये ट्रू होना पड़ेगा, मतलब फास्ट साइकिल फास्ट बुक तो गिरना पड़ेगा, तब जाके बाकी वाला बुक और बाकी वाला साइकिल गिरेगा। ओके, सो ये तो हो गया, फास्ट वाला गिर गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि n इज इक्वल टू, अगर n का जगह में अगर हम लोग k लिया तो k के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा बल्कि हम लोग कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग फिर शो करना होगा कि ये अगर k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए भी ट्रू होना पड़ेगा। वही हमें लिखा हुआ है, देखो, ट्रूथ ऑफ pk इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ pk+1। ठीक है, दैट इज ट्रूथ ऑफ pk इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ pk+1, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि अगर k वाला गिरा तो ऑब्वियसली k+1 वाला बुक तो गिरना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? साइकिल के सब में देखने से भी देख सकते हो कि अगर k नंबर में कोई साइकिल है, k सपोज 100 पकड़ लो, अगर 100 नंबर में जो साइकिल है वो अगर गिरा तो ऑब्वियसली उसके बाद जो साइकिल रखा हुआ है 100+1 तो वो वाला भी गिरेगा। ठीक है, समझ में आया ना? साथ साथ में रखा हुआ है क्योंकि ये इंडक्शन वाला है, इंडक्टिव एक के बाद दूसरा करके रखा हुआ है। इंडक्शन मतलब मालूम है तुमको, इंडक्टिव प्रोसीड्यूर एक के बाद दूसरा कंटिन्यू जाता है, तो एक के बाद जब 100 वाला साइकिल गिरेगा तो ऑब्वियसली 101 जो साइकिल है वो भी गिरना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ में कंसिडर कर लिया कि के वाला साइकिल गिर गया, तो अभी हम लोग को करके दिखाना पड़ेगा कि k+1 वाला साइकिल भी गिरना ही पड़ेगा। अगर ये गिरा नहीं तब तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर 100 वाला साइकिल गिरा तो ऑब्वियसली 101 वाला साइकिल भी गिरेगा। जो 100 नंबर में जो साइकिल है वो अगर गिरा तो 101 में जो साइकिल है वो भी गिरेगा। बट अगर तो उसी को हम लोग शो करके दिखाना पड़ेगा यहाँ में कि अगर ये k के लिए ट्रू है तो ये k+1 के लिए भी ट्रू होना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर k+1 के लिए भी ट्रू हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि k जो है एक अननोन लिया था हम लोग, जो यहाँ में k लिया था, ये k जो है एक अननोन है। अननोन मतलब इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं। k इज़ एनी नंबर, ये हमें लिखा देखो k इज सम पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है k का वैल्यू। तो अगर k का वैल्यू कोई एक पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लिया तो k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो अगर k के लिए ट्रू है तो कोई भी नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा, और कोई भी नंबर के लिए ट्रू है मतलब सारा के लिए ट्रू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देख लो, इसमें एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट है यहाँ में, तो ये कॉन्सेप्ट को समझना होगा, लॉजिक। ठीक है, देख लो, अगर ये k के लिए ट्रू है, k क्या है? एनी नंबर है, मतलब कोई भी नंबर। तो अगर कोई भी नंबर के लिए ट्रू है, कोई भी मतलब क्या है? सबके लिए। ठीक है, कोई भी नंबर के लिए ट्रू है तो मतलब सारा नंबर के लिए ट्रू है। समझ में आया कि नहीं? तो फर्स्ट हम लोग को शो करना पड़ेगा कि जो हम लोग को गिवन क्वेश्चन दिया रहेगा वो 1 के लिए ट्रू होना पड़ेगा। n का वैल्यू जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एकदम सिंपली देख लो, फर्स्ट हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हम लोग को शो करना पड़ेगा कि P1 इज ट्रू, मतलब P में जब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि एज ये 1 के लिए ट्रू है तो अभी k के लिए भी ये ट्रू हो सकता है, क्योंकि अगर फर्स्ट साइकिल गिर गया तो ऑब्वियसली n नंबर में जो साइकिल खड़ा हुआ है वो भी गिरेगा। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर कर ले कि सपोज n नंबर में जो साइकिल खड़ा हुआ है वो भी गिरेगा बोल के कंसिडर कर लिया। गिर भी सकते, नहीं भी गिर सकते, बट हम लोग कंसिडर कर ले कि n नंबर में जो साइकिल खड़ा हुआ है वो भी गिरेगा। तो अगर अभी देख लो, अभी मेन काम स्टार्ट होगा कि अगर n नंबर वाला साइकिल अगर गिर गया तो उसके बाद जो साइकिल है इमीडिएट जो उसका जो नेक्स्ट साइकिल है तो वो भी तो गिरना पड़ेगा।
तो अभी हम लोग को शो करना पड़ेगा कि k+1 मतलब k वाला साइकिल अगर गिरा तो k के बाद जो साइकिल है वो भी गिरना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग को शो करना पड़ेगा कि k+1 में जो साइकिल रखा हुआ है वो भी गिरेगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस है कि हम लोग को फर्स्ट करना होगा कि फर्स्ट वाला साइकिल गिर गया मतलब P1 के लिए ट्रू होना पड़ेगा, और अगर P1 के लिए ट्रू है तो हम लोग को लेना पड़ेगा कि लेट ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये k के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, और k के लिए ट्रू होगा ये हम लोग कंसिडर किया, तो इसको यूज़ करके हम लोग शो करेंगे कि उसके बाद वाला जो है k+1 वाला जो है मतलब k+1 वाला जो साइकिल है वो भी गिरेगा बोल के हम लोग शो करेंगे। मतलब अगर इक्वेशन k के लिए ट्रू है तो हम लोग को शो करना पड़ेगा कि द इक्वेशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर k+1। ठीक है, और अगर वो k+1 के लिए भी ट्रू हो गया तो हम लोग को मालूम है कि ये k+1, तो हम लोग k+1 के लिए अगर ट्रू हो गया, देख लो अगर ये k+1 के लिए ट्रू हो गया, ठीक है, मतलब k+1 वाला जो साइकिल है ये सपोज k+1 वाला साइकिल है, हम लोग प्रूफ कर दिया कि k+1 वाला साइकिल गिर गया, तो k वाला साइकिल तो गिरेगा ही ना। हम लोग जो लेट लिया था हम लोग लेट लिया था फर्स्ट हम लोग कि k वाला साइकिल गिरेगा, बट इसको यूज़ करके अगर हम लोग प्रूफ कर दिया कि k+1 वाला साइकिल गिर गया तो ऑब्वियसली उसके आगे वाला साइकिल तो गिरा ही है ना, तो मतलब k वाला भी ट्रू हो जाएगा। और k क्या था, k एक अननोन था, और अननोन के लिए ट्रू हुआ मतलब k एक एनी नंबर था, और एनी नंबर के लिए अगर ट्रू है तो सारा नंबर के लिए ट्रू होगा, तो मतलब वो जो इक्वेशन होगा वो सारा नंबर के लिए ट्रू होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस को देख लो एक बार, क्या करना है, फर्स्ट जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको Pn ले लेना है। ठीक है, एकदम सिंपली मैं दिखा दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको Pn कंसिडर कर लेना है। फिर फर्स्ट n के जगह में 1 पुट करना है और शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आया। n का जगह में 1 पुट करने से दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आना पड़ेगा। अगर इक्वल आ गया तो हम लोग बोलेगा कि हम लोग का फर्स्ट स्टेप हो गया। ओके, दैट मीन्स फर्स्ट साइकिल जो है वो गिर गया, फर्स्ट साइकिल हमारे ফার্স্ট সাইকেলটা আমার পড়িলে। ঠিক আছে, দেন আমি কনসিডার কৰিব পাৰিম যে আমাৰ কে नंबर जो साइकिल रखा আছে এইটোও पड़िब। ठीक है, सो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि के नंबर में जो साइकिल रखा हुआ है वो भी गिरेगा। तो अगर के नंबर वाला साइकिल गिरेगा मतलब अगर ये n इजिकल टू के लिए ट्रू है बोल के हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर 1 के लिए ट्रू है तो हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा कि लेट द इक्वेशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर के, और अगर ये के लिए ट्रू है तो ये k+1 के लिए भी ट्रू होना पड़ेगा, और ये चीज़ हम लोग को करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है स्टेटमेंट। तो एक बार एक क्वेश्चन करने से इजी आ जाएगा। अभी थोड़ा पजल लग सकता है कि ये सब हम लोग अननोन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी एक प्रैक्टिकली प्रॉब्लम देखने से तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स सी, कल ये याद रखना n का वैल्यू 1 के लिए करना होगा। फर्स्ट n इजिकल टू 1 लेके हम लोग करेगा कि ये 1 के लिए ट्रू है, फिर हम लोग कंसिडर करेंगे कि लेट ये जो इक्वेशन है ये k के लिए ट्रू है, और फिर हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे कि अगर ये k के लिए ट्रू है तो ये k+1 के लिए भी ट्रू है। तो अगर ये k+1 के लिए ट्रू है तो ऑब्वियसली ये सारा नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा, बिकॉज k एक एनी नंबर है, और k+1 के लिए अगर ट्रू हो गया तो k के लिए भी ट्रू होगा, और k के लिए ट्रू हो गया तो सारा नंबर के लिए ट्रू होगा। ठीक है, ओके, लेट्स सी, एक एग्जाम्पल देख लो उसके बाद समझ में आ जाएगा। ये है एक्सरसाइज प्रॉब्लम, एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो मैं फर्स्ट एक सिंपल क्वेश्चन को, मैं जो अभी जो क्वेश्चन दिया था उसी को मैं करा के दिखा देता हूँ लोगों को। ओके, लेट्स सी, अभी जो मैंने एक क्वेश्चन बोला था जो एग्जाम्पल, उसको मैं करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज हम लोग उसके बाद जाएंगे क्योंकि ठीक है, देख लो क्या स्टेटमेंट है। ये Pn एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट था, 1 + 2 + 3 + ... n। ठीक है, ये है फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या था, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अभी सपोज इसको हम लोग को प्रूफ करना है, जो मैंने अभी भी एकदम स्टार्टिंग में बोला था, तो इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाएगा यूजिंग इंडक्शन। सो लेट्स सी, n का वैल्यू फर्स्ट हम लोग को 1 लेना है ना, तो इसका सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट हम लोग को क्या करना होगा, n का वैल्यू 1 पुट करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें n = 1 पुट कर दो, तो n का वैल्यू 1 पुट कर दिया यहाँ में, तो P1 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट को हम लोग ऑलवेज इस तरीके से लिखते हैं। ओके,
P1। अभी इसमें देखो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में से हम लोग क्या करना है, जब भी n इज इक्वल टू 1 लिया, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, रिमेंबर दैट n ऑलवेज नंबर ऑफ, लेफ्ट साइड में n क्या करता है, नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो n का वैल्यू 1 लिया मतलब कितना टर्म आएगा इसमें, 1 टर्म आएगा, 1 टर्म मतलब फर्स्ट टर्म आएगा। n का वैल्यू 1 लिया, n इसमें ओवरऑल कितना टर्म है, n टर्म है, n कौन सा, ये लास्ट वाला है n। तो n का जगह में अगर 1 लिया मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को। तो जब भी n का वैल्यू 1 लेंगे तो मतलब लेफ्ट साइड में से फर्स्ट टर्म को लेना है, ठीक है, क्योंकि एक ही टर्म का रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें। n का वैल्यू 1 लिया तो इस तरफ कितना टर्म है, 1 2 3 डॉट n टर्म है, ओवरऑल कितना टर्म है, n टर्म है। तो n का वैल्यू अगर 1 लिया मतलब एक ही टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ये आएगा। तो लेफ्ट साइड में जब भी n का वैल्यू 1 पुट करोगे, n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो याद रखना कि लेफ्ट साइड में ऑलवेज ये फर्स्ट वाला जो नंबर है वही आएगा, ठीक है। n का वैल्यू अगर 2 पुट कर दिया तो ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों आता, ठीक है, फर्स्ट एंड दोनों ये आता। अगर n का वैल्यू 3 पुट कर दिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों आएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में n जो है वो नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ऐसा सम ऑफ द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर 1 पुट कर दिया तो सम ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर, 1 नेचुरल फर्स्ट टच 1 नेचुरल नंबर मतलब फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये 1 आएगा। अगर 2 लिया तो सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर, अगर 3 लिया तो सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, ऐसा करके, ठीक है। तो n का वैल्यू अगर 3 लिया तो ये सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, ये तीनों आएगा। n का वैल्यू अगर 4 लिया तो 1 + 2 + 3 + 4, इसके डॉट 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 दिया ही हमें, मतलब इसके बाद और बहुत सारे नंबर है, ठीक है, ये हमें बहुत सारे नंबर है 3 4 5 6 ऐसा करके आपका n तक जाएगा। n इज़ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जब भी n का वैल्यू 1 पुट करके तो ऑलवेज ये फर्स्ट टर्म को यहाँ में लिख दो, ठीक है। अभी राइट साइड में देखो, राइट साइड में क्या है, n का वैल्यू 1 पुट कर देना है, n का वैल्यू 1 पुट करो और रिमेंबर दैट दोनों साइड में सेम आना चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होना पड़ेगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि 1 के लिए ये ट्रू है, ठीक है। तो अभी इसमें सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, लेफ्ट साइड में तो 1 है और राइट साइड में क्या आ गया, 1 इंटू ये 1 + 1 कितना आ गया 2, ठीक है, नीचे तो 2 है, 1 + 1 2 हो गया। तो अभी इसको कैंसिल करो तो क्या आ गया 1 = 1, ठीक है। तो मतलब P1 के लिए तो ये ट्रू हो गया, मतलब ये जो हम लोग का बस बहुत सारा साइकिल था, मतलब इसमें से हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट साइकिल गिर गया, ठीक है। अभी अगर फर्स्ट साइकिल गिर गया तो ऑब्वियसली बाकी साइकिल का भी गिरने का चांसेस है, समझ में आया कि नहीं। मतलब ये जो इक्वेशन है ये अगर फर्स्ट 1 के लिए अगर ट्रू हो गया तो 2 3 4 5 6 सबके लिए ट्रू होने का चांसेस है। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि सबके लिए ट्रू है, बट चांसेस तो है। जैसे कि साइकिल में बुक में हमने बोला था कि फर्स्ट वाला अगर बुक गिर गया तो उसके पीछे जो बुक रखा हुआ है ऑब्वियसली वो भी गिरेगा, उसके पीछे जो बुक रखा है वो भी गिरने का चांसेस है, ठीक है। तो एज फर्स्ट बुक गिर गया तो हम लोग के पास ऑप्शन आ गया कि अभी उसके बाद नेक्स्ट वाला भी गिर सकता है। तो इसलिए हम लोग अभी कंसिडर कर लेगा कि लेट एज ये 1 के लिए ट्रू हो गया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये P1 के लिए ट्रू हो गया, देयरफॉर P1 इज। तो फर्स्ट स्टेप जो हम लोग का स्टेटमेंट था मैथमेटिकल इंडक्शन का जो फर्स्ट स्टेप था वो तो हो गया, P1 इज ट्रू। हम लोग का जो स्टेटमेंट का फर्स्ट स्टेप था वो हो गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया, P1 इज ट्रू हो गया। अभी हम लोग सेकंड स्टेप में आएंगे, मतलब अभी हम लोग को अगर ये 1 के लिए ट्रू हो गया तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि लेट ये के लिए भी ट्रू होगा, लेट इट इज़ ट्रू फॉर लेट let given statement is true for n is equal to k, let given डायरेक्ट ऐसा लिख दो Pn is true for let it is true for n equal to k, ओके, व लेट दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी एज ये 1 के लिए ट्रू हो गया तो अभी हम लोग लेट कर लिया, मतलब कंसिडर कर लिया, ओके। আমি ইয়াত ধৰি লৈছোঁ যে প্ৰথম চাইকেলটো যদি গিৰি পৰিলে তো দ্যাট মিন্স के नंबर जो साइकिल रखा है ये पड़ो, ओके। सो दैट मीन्स पहले वाला साइकिल अगर गिर गया तो ऑब्वियसली के वाला साइकिल जो है के नंबर जो साइकिल है के नंबर में वो भी गिरने का चांसेस है, ओके। हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि गिरेगा, हमें डायरेक्ट कब नारू कि पड़ब पारे बोले हमें धरि लैसो, ओके। लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, ओके। सो नाउ तो हमें धरि लैसो जे n इज इक्वल टू के कारण ट्रू है, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। तो जो n इज इक्वल टू के कारण ट्रू है तो हमें इतना n जगह के पुट करिले ये इक्वल হ'ব লাগিব। আমি ইয়াত ধৰি লৈছোঁ যে এইটো n ইজ ইকুৱেল টু के কাৰণে ট্ৰু। তো এতিয়া আমি n ঠাইত k পুট কৰি চাওঁ কি হয়। n ঠাইত ইয়াত k পুট কৰি দিওঁ both side 1 + 2 + 3 + ...
ইয়াত চোৱা এনৰ ঠাইত কি পুট কৰিব লাগে, আমি এনৰ ঠাইত কে, ইয়াত চোৱা এনৰ ঠাইত আমি কি পুট কৰিছোঁ, এনৰ ঠাইত আমি কে পুট কৰিছোঁ। তো ইয়াতো এনৰ ঠাইত কে পুট কৰি দিয়া, ঠিক আছে, একদম ইজি হয়। অ'কে, ৰাইট ছাইডতো এনৰ ঠাইত के पुट कर लगे एंड देन डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो इसमें देखो ये जो इक्वेशन था, जो गिवन स्टेटमेंट था, इसको सेम टू सेम इसी को लिखा, खाली n का जगह में k लिख दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ में कंसीडर किया हुआ है कि इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा, बल्कि हम लोग ऑलरेडी लिख दिया, तो हम लोग को अभी लिखना पड़ेगा कि ये दोनों से k के लिए भी ये दोनों इक्वल होगा बोल के, क्योंकि हम लोग यहाँ में कंसीडर किया, हाँ ये कंसीडर किया, तो हम लोग श्योर नहीं कि ये होगा, बट हम लोग ले लिया कि सपोज ये इक्वल होगा। ओके, सो नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अभी इसका ऊपर बेस करके हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि k+1 के लिए भी ये ट्रू होगा। मतलब फर्स्ट वाला साइकिल अगर गिर गया, फर्स्ट वाला साइकिल यहाँ में हम लोग दिखा दिया कि फर्स्ट वाला साइकिल तो गिर गया, नंबर 1 के लिए ट्रू हो गया। तो एस फर्स्ट वाला साइकिल अगर गिर गया तो हम लोग का चांसेस है कि k वाला भी गिरेगा, तो इसलिए हम लोग कंसिडर कर लिया कि k वाला गिर गया बोल के हम लोग कंसिडर कर लिया। तो k वाला साइकिल अगर गिर गया तो अभी k+1 वाला भी तो गिरना पड़ेगा, बिकॉज इसका आगे वाला गिरा तो उसका नेक्स्ट वाला भी तो गिरेगा, बिकॉज सब एक साथ में एक के बाद एक रखा हुआ है। तो अगर k वाला गिरा तो ऑब्वियसली k+1 भी गिरना पड़ेगा। तो अगर हम लोग का ये ट्रू है, जो हम लोग pk लिखे, ये अगर ट्रू है तो pk+1 भी ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को शो करके दिखाना पड़ेगा कि ये pk+1 भी ट्रू है। तो pk+1 को एक बार यहाँ में लिख दो, यहाँ में लिख लो, वी हैव टू शो दैट, we have to show that pk+1 is, we have to show that pk+1 is also true. Okay, if pk is true, if pk is true, समझ में आया ना। क्योंकि अगर k नंबर ऑफ साइकिल अगर गिर गया तो k+1 में जो साइकिल रखा वो भी गिरना होगा। मतलब अगर 100 वाला k का बिल अगर 100 ले लिया तो 100 नंबर में जो साइकिल है वो अगर गिरा तो 101 वाला साइकिल भी गिरेगा, ठीक है। तो ये तो होना पड़ेगा। अगर 101 वाला साइकिल गिरा नहीं तो मतलब 100 वाला साइकिल भी गिरा है कि नहीं गिरा हम लोग श्योर नहीं बोल सकते, ठीक है। बट अगर 101 वाला साइकिल गिर गया तो 100 वाला साइकिल तो ऑब्वियसली गिरना पड़ेगा, क्योंकि सब सीरियली होता है ना। अगर 101 वाला गिर गया, ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर से गिरते हुए आ रहा है और ये सब आ गया और बीच में गिरा नहीं, लास्ट वाला गिर गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर ये 100 वाला गिरा, 101 वाला गिरा तो ऑब्वियसली 100 वाला भी, यहाँ में जितना भी साइकिल रहेगा 101 से पहले सारा गिरना पड़ेगा, तभी जाके ये 101 वाला गिर सकता है ना। एकदम इजीली सोचना है तुम। अगर 101 में 1 नंबर में जो साइकिल खड़ा हुआ है, यहाँ में जो साइकिल रखा हुआ है 101 नंबर में, अगर ये गिर गया नीचे तो उसके आगे वाला साइकिल भी तो गिरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो फर्स्ट वाला साइकिल को ही फोर्स किया था गिरने के लिए। तो अगर ये गिर गया और बीच वाला गिरा नहीं, लास्ट वाला कैसे गिर जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर लास्ट वाला गिर गया तो एकदम फास्ट वाला तो गिर गया, हम लोग यहाँ में प्रूफ करके दिखा दिया। तो फर्स्ट वाला अगर गिर गया एंड लास्ट वाला भी गिर गया तो ऑब्वियसली बीच वाला भी तो गिरना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ में दिखाना है कि अभी अगर पीक हम लोग को शो करके दिखाना है कि k+1 के लिए भी अगर ट्रू है तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, अगर k+1 के लिए ट्रू है तो मतलब इसके बीच में जितना भी था सारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एनी कोई भी k के लिए ये ट्रू हो जाएगा, बिकॉज k जो लिया हम लोग यहाँ में ये k इज़ एनी नंबर। तो अगर k के लिए ट्रू हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि सारा नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी, वी विल शो pk+1। तो पहले pk+1 को यहाँ में एक बार लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। pk+1 को लिखने के लिए ओके, एकदम इजी है। तुम इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ने से बहुत ज़्यादा चीज़ मिलेगा तुमको, और इंजीनियरिंग या कुछ भी के लिए, सब के लिए सब का टेक्निक्स चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट होगा तुम्हारा, कोई भी टेक्निकल लाइन में जाने का जो जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इस बार जो मैथमेटिक्स मिलेगा वो टोटली टेक्निकल मिलेगा, ठीक है। तो देखते जाओ। तो नेक्स्ट देखो अभी क्या, pk+1 का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट हम लोग pk+1 हम लोग को प्रूफ करना है कि pk+1 ट्रू है, ठीक है। बट पहले हम लोग लिख तो लेते हैं कि व्हाट इज़ pk+1, pk+1 है क्या, उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो pk+1 को कैसे लिखेंगे, ये k का ऊपर डिपेंड करके लिखना है। ये जो pk है, ये यहाँ में जो pk लिखा है हम लोग, इसका ऊपर बेस करके हम लोग को ये pk+1 को लिखना है,
ठीक है, पी अंडर ब्रैकेट के प्लस वन को लिखना है। ठीक है, कैसे लिखोगे? लिखने के टाइम में देख लो, ये यहाँ से ये जो पी अंडर ब्रैकेट के दिया हुआ है, इसमें से जो लेफ्ट हैंड साइड है अप टू के नंबर ऑफ टर्म सेम टू सेम लिख दो। 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस के। ठीक है, यहाँ के तक सेम टू सेम लिख दो। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड में कितना टर्म है, यहाँ में के टर्म है, यहाँ में के टर्म है। ओके, तो लेफ्ट साइड में कितना टर्म है, के टर्म है। और अभी हम लोग को कितना टर्म चाहिए, के प्लस वन टर्म चाहिए। तो मतलब इससे यहाँ में जितना भी टर्म है वहाँ से यहाँ में एक ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ में देखो, यहाँ में के नंबर ऑफ टर्म है और यहाँ में कितना है, के प्लस वन। तो यहाँ में यहाँ का जो के है वो तो हम लोग यहाँ में लिख दिया, यहाँ का जो के टर्म है ये सारा को लिख दिया। बट यहाँ में तो ये दोनों तो सेम तो नहीं है, यहाँ में एक ज़्यादा है, यहाँ में के प्लस वन है, तो मतलब और एक टर्म आएगा यहाँ में। ठीक है, याद रखना, अप टू के तक यहाँ से डायरेक्ट यहाँ में लिख दो। और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो टर्म है उसको कैसे लिखोगे, उसको ये वाला टर्म के ऊपर बेस करके लिखना है। यहाँ में अगर प्लस साइन है तो नेक्स्ट प्लस आएगा, अगर यहाँ में इंटू है तो यहाँ में भी इंटू आएगा। ठीक है, सो डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, सो नाउ इसके ऊपर डिपेंड करके ये वाला साइन को देना है। यहाँ में जो साइन है यहाँ में वही साइन देना है, यहाँ में अगर प्लस है तो यहाँ में भी प्लस देना है। और यहाँ में के है तो अभी देखो नेक्स्ट वाला टर्म क्या आएगा, नेक्स्ट वाला टर्म के का जगह में जस्ट के प्लस वन पुट कर दो। क्यों वन पुट के प्लस वन लिखा, बिकॉज देखो एवरी स्टेप में प्लस होके जा रहे, इसमें वन आया, यहाँ में 3 आया। मतलब जस्ट इतना सोचना कि के का जगह में के प्लस वन पुट कर देना है। ठीक है, के का जगह में नेक्स्ट स्टेप में यहाँ में क्या करना है, ये टर्म का ऊपर ये जो टर्म है इसको फॉलो करना है। इसमें के का जगह में के प्लस वन लिख देना है, यहाँ में जो भी टर्म हो। यहाँ में अगर ऐसा है के स्क्वायर है तो तुमको लिख देना है के का जगह में के प्लस वन स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ में के क्यूब है तो सेम टू सेम यहाँ में क्यूब भी आ जाए, मतलब ये इसका ऊपर डिपेंड करके आएगा। यहाँ में जो भी है, यहाँ में अगर के क्यूब है तो के का जगह में के प्लस वन लिख दो, ऊपर का क्यूब सेम ही रहेगा। यहाँ में अगर के टू दी पावर 4 है तो यहाँ में भी 4 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ में के टू दी पावर 4 आएगा, बट खाली के का जगह में के प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, के प्लस वन आ जाएगा। और एक चीज़ देख लो, अगर सपोज इसका ये जगह में ऐसा दिया हुआ है के इंटू के प्लस वन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप को कैसे लिखना है, ये के के जगह में इन प्लेस ऑफ के यू हैव टू राइट के प्लस वन। ठीक है, ये के का जगह में क्या लिखना है, के प्लस वन, और इंटू ये ब्रैकेट में भी जितना भी के है सबको के प्लस वन से रिप्लेस करना है। रिमेंबर दैट, जितना भी के है सबको के प्लस वन से रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट के को तो हम यहाँ में के प्लस वन लिख दिया। अभी ये सेकेंड वाला जो के है उसको भी हमें जब लिखोगे तो के का जगह में के प्लस वन लिखना है। अभी ये जो प्लस वन है इसको यहाँ में आएगा प्लस वन। ठीक है, समझ में आया? तो इस टर्म को कैसे लिखना है, नेक्स्ट वाला टर्म को, ये इतना तक तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इतना तक। उसके बाद ये वाला टर्म को लिखने के टाइम में इसका ऊपर बेस करके आएगा कि यहाँ में जितना भी के है सबको के प्लस वन से रिप्लेस कर दो। और ये साइन इसके आगे प्लस साइन होगा ना माइनस साइन होगा ना इंटू होगा, डिपेंड करके ये वाला साइन के ऊपर। ठीक है, तो सेम टू सेम ये देखो, इसको मैंने ये के था, अगर ऐसा दिया हुआ है ये के का जगह में, तो अगर यहाँ में के है, यहाँ में के प्लस वन है तो के का जगह में क्या लिखा, के प्लस वन। और फिर ये वाला के का जगह में भी यहाँ में के प्लस वन आ गया, और ये वाला प्लस वन जो है वो एक्स्ट्रा करके यहाँ में आया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने से इसका जगह में ये आ जाएगा के प्लस वन इंटू यहाँ में आ जाएगा के प्लस वन के प्लस वन के प्लस टू, ऐसा आ जाएगा। मतलब अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग को ऐसा लिखना है। ठीक है, के का जगह में क्या आ जाएगा, के प्लस वन, और ये के प्लस वन के जगह में आ जाएगा के प्लस टू। ठीक है, तो ये चीज़ को ज़्यादातर देखना ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ में गलती करता है। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट का यहाँ में प्रॉब्लम होता है। ओके, सो यहाँ में जितना भी के है वो के को के प्लस वन बोल के रिप्लेस कर देना है नेक्स्ट स्टेप में। ओके ओके, सो नाउ सी इट इज़ इक्वल टू, राइट साइड में क्या आ जाएगा, राइट साइड में भी सेम, लेफ्ट साइड तो हो गया, यहाँ तक के तक यहाँ में लिख दिया, और नेक्स्ट वाला टर्म को इसका ऊपर बेस करके के का जगह में के प्लस वन यहाँ में डाल दिया। अब राइट साइड में क्या करना है, के का जगह में के प्लस वन पुट कर देना है। यहाँ में के का जगह में के प्लस वन इंटू यहाँ में क्या करना है, के का जगह में के प्लस वन। रिमेंबर दैट जितना भी के है सबका जगह में के प्लस वन पुट करना है, डिवाइडेड बाई 2। ये देखो राइट साइड में मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, जस्ट के का जगह में के प्लस वन पुट किया। ये के का जगह में के प्लस वन लिखा, यहाँ में के प्लस वन ऑलरेडी था तो ये प्लस वन तो एक्स्ट्रा करके यहाँ में है ही, और ये के जगह में मैंने क्या किया, के प्लस वन लिखा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। लेफ्ट साइड में यहाँ तक सेम टू सेम लिख देना है,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को जस्ट के का जगह में के प्लस वन डाल दो, और राइट साइड में भी जितना भी के है सबको के का जगह में के प्लस वन से रिप्लेस कर दो। सेम टू सेम लिख दो, खाली के का जगह में के प्लस वन रिप्लेस करके, और यहाँ में भी नेक्स्ट स्टेप को के का जगह में के प्लस वन को रिप्लेस करके। ठीक है, तो ये हो गया पी के प्लस वन। ओके ओके, सो मेन यही चीज़ है तुम ये पी के प्लस वन को लिखना। ठीक है, सो याद रखना अप टू के तक यहाँ से सेम टू सेम लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को इसको फॉलो करो, के का जगह में के प्लस वन डाल दो, जितना भी के है सारा के का जगह में के प्लस वन डाल के हमें लिखना है, मिस्टेक नहीं करना है। और राइट साइड में भी जितना भी के है सबका जगह में के प्लस वन डाल के हमें लिखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये चीज़ को प्रूव करके दिखाना होगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा ये ट्रू है बोल के। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम लोग को ट्रू है बोल के दिखाना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ, पी के प्लस वन हम लोग को मिल गया। ये लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, पी के प्लस वन का क्या है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस वन। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट साइड को ले लिया। अभी हम लोग को ये राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाना होगा। राइट हैंड साइड क्या है के प्लस वन + 1/2। इसको हम लोग ऐसा करके भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। देखो एक स्टेप इसको मैं सिंप्लीफाई करके हमें लिख लेता हूँ कि हम लोग को क्या निकालना है। क्या निकालना है के प्लस वन, और ये के हम दो वन है तो ये हो जाएगा के प्लस ये 1 + 1 जो है ये 2 बन जाएगा। तो हम लोग को ये दिखाना है राइट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, के प्लस वन इंटू के प्लस टू डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है हम लोग को याद रखना, जो स्टेटमेंट मिला था हम लोग को बोला है कि ये इक्वेशन नंबर 1 मतलब ये जो पी के है इसको यूज़ करके प्रूव करना है कि पी के प्लस वन ट्रू है। तो ये क्या करेंगे हम लोग यहाँ से ये पी के प्लस वन को यहाँ में यूज़ करेंगे। मतलब ये जो हम लोग वैल्यू यहाँ से लिया था, एक मिनट देखो, ये वाला जो है 1 + 2 + 3 अप टू के, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू यहाँ से पुट कर देगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट अप टू के। ये तो यहाँ से लिखा था ना हम लोग इतना तक, रिमेंबर दैट ये वाला पार्ट नहीं हूँ, इतना तक लिखा था यहाँ से। तो इसका वैल्यू तो हम लोग पुट कर सकते हैं। इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो इसका जगह हम लोग पुट कर देंगे क्या के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये यहाँ से लिखा इतना का वैल्यू, रिमेंबर दैट इतना का वैल्यू ही मैंने लिखा है तुम, क्योंकि इतना 1 + 2 + 3 अप टू के 1 + 2 + 3 अप टू के इसका वैल्यू यहाँ में दिया हुआ है। ओके, তাৰপিছত नेक्स्ट ইয়াত কি দিয়া বাকি যোনটো টাৰ্ম আছে সেইটো সেম টু সেম লিখি দিয়া কি আছে k + 1, সো ইট উইল বি k + 1। ओके হল, এতিয়া সো এতিয়া আমাৰ কাম আছে কি কেনেকা সিম্পলিফাই কৰিবা আপ টু ইমানটো কৰাৰ পিছত ম্যাক্সিমাম প্ৰবলেমত ইমানটো কৰাৰ পিছত এই ভ্যালুটো ইয়াৰ পৰা পুট কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত লিখি দিয়া সাইডত কি এই ভ্যালুটো কৰ পৰা পুট কৰিলে আমি ইউজিং ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1। ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 পৰা আমি ভ্যালুটো ইয়াত পুট কৰিছো এই ভ্যালুটো। ঠিক আছে, তো এতিয়া কি কৰিব লাগে কমন লৈ লওঁ। এতিয়া আমি ইয়াত চাওক k + 1 কমন আহি আছে। তো এই ভ্যালুটো এই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 পৰা যেতিয়া আমি ভ্যালু পুট কৰিম তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে আমাৰ ইয়াত ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 পৰা ভ্যালু পুট কৰাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত কমন ল'ব লাগিব। কি কমন ল'ব আছে ইয়াত k + 1। তো k + 1 আমি ইয়াত কমন লৈ লওঁ। তো k + 1 কমন ল'লে কি হ'ব, কি থাকিব ইয়াত থাকিব k/2 আৰু ইয়াত আহিব +1। ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা k + 1টো আমি বাহিৰত ওলাই দিলোঁ। তো কি থাকিলে ইয়াত k/2 থাকিলে, তো k/2 ইয়াত আহিলে আৰু ইয়াৰ পৰা গোটেই k + 1টো আমি বাহিৰত ওলাই দিলোঁ। k + 1 ইয়াত আহি গ'ল, তো ইয়াত কি থাকিলে 1 থাকিলে। বুঝি पाइसे ना, আমি कॉमन লৈছোঁ। ओके, समझा ना, हम लोग यहाँ से कॉमन लिया, k + 1 दोनों में है तो दोनों में से बाहर निकाल दिया। यहाँ से k + 1 को बाहर निकाला तो क्या बचा है k/2, यहाँ से k + 1 को बाहर निकाला तो क्या बचा है हमें 1। तो अभी देख लो ये हो गया k + 1। ठीक है, अभी यहाँ में एलसीएम ले लो, यहाँ में एलसीएम लेने से यहाँ में आएगा 2 और ये k एलसीएम लेने से 2 × 1 यहाँ में आएगा 2। ठीक है, तो ये आ गया। ओके, तो अभी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 k + 1 इंटू k + 2। ओके, k + 1 इंटू k + 2। ओके, सो देख लो सेम आ गया ये राइट हैंड साइड k + 1 k + 2 डिवाइडेड बाई 2, k + 1 k + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम लोग यहाँ में प्रूफ कर दिया कि ये जो k + 1 है, सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर pk + 1 इज देयरफॉर p, एंड देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर pk + 1 इज ट्रू। नीचे लिखना ही है।
ठीक है, मैं यहाँ में लिख रहा हूँ देयरफॉर पी के प्लस वन इज, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, इसका नीचे लिखना पी के प्लस वन इज ट्रू। ठीक है, देख लो हम लोग लेफ्ट साइड लेके इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया था और इसमें से हम लोग राइट हैंड साइड को निकाल दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड लिया था, राइट हैंड साइड निकाल दिया, तो मतलब पी के प्लस वन इज ट्रू। तो इसमें से हम लोग बोल सकते हैं कि जो के प्लस वन वाला साइकिल था वो भी गिर गया। तो अभी देखो फर्स्ट वाला साइकिल गिरा है और के प्लस वन वाला साइकिल भी गिरा है, तो मतलब उसका बीच वाला साइकिल भी तो गिरा है। तो मतलब इसमें से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट वाला साइकिल गिरा है तो हम लोग पहले ही दिखाया P1 इज ट्रू, और यहाँ से हम लोग प्रूफ कर दिए कि के प्लस वन वाला साइकिल भी गिरा है, तो ऑब्वियसली उसमें बीच वाला जो के है उसका भी, और बीच में इसका बीच में ही के है, वन और के प्लस वन के बीच में के है, तो वह के वाला साइकिल अगर गिरा है तो ऑब्वियसली के वाला साइकिल भी गिरेगा। और के क्या है, के इज़ एनी अननोन है, और के वाला साइकिल गिरा है तो मतलब सारा साइकिल गिर जाएगा, क्योंकि के क्या है, के इज़ एनी अननोन है, के इज़ एनी नंबर, और एनी मतलब ऑल नंबर। तो अगर सब नंबर के लिए ये ट्रू है तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं हम लोग का जो गिवन इक्वेशन था ये सब के लिए ट्रू है। ठीक है, तो एकदम इजीली समझना कि हम लोग फर्स्ट प्रूव किया कि ये P1 के लिए ट्रू था, और उसके बाद हम लोग कंसिडर किया था कि P के ट्रू है, हम लोग लेट लिया था कि के लिए ट्रू है, बल्कि हम लोग पकड़ लिया था। उसके बाद हम लोग शो किया कि के प्लस वन के लिए ट्रू है। तो अगर के प्लस वन के लिए अगर ट्रू है तो हम लोग कन्फर्म है कि अगर के प्लस वन के लिए ट्रू है तो के लिए भी ट्रू होगा, और के लिए ट्रू है तो क्या हो जाएगा, सारा के लिए ट्रू हो जाएगा, बिकॉज के इज़ अननोन नंबर। अननोन नंबर मतलब एनी नंबर, और एनी नंबर मतलब सारा नंबर को हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3 4 100 200 1 लाख 2 लाख जो भी पकड़ लो सबके लिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग पी के प्लस वन के लिए ट्रू है तो जो हम लोग को जो इंडक्शन का जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिखाया था उसमें से हम लोग बोल सकते हैं कि ये अगर n प्लस वन के लिए ट्रू है तो सॉरी के प्लस वन के लिए ट्रू है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारा नंबर के लिए ट्रू है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल n। ठीक है, तो ये सारा n के लिए ये ट्रू है। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिखाया, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। जस्ट फर्स्ट क्लास है तो जस्ट मैं दिखा दिया कि क्या चीज़ है, लेकिन हम लोग को बहुत कुछ जानना है। तो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो यू कैन सी हियर ये जो स्टेटमेंट है ओके, सो सारा क्वेश्चन ऐसा ही दिया हुआ है एक्सरसाइज में, मैं दिखा देता हूँ क्या है एक्सरसाइज। ये है एक्सरसाइज नंबर 4.1। ये सारा क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा। ये सारा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तो इसमें इसको P1 पकड़ना पड़ेगा, फिर n का वैल्यू 1 पुट करना होगा, फिर पी के को निकालना पड़ेगा, फिर पी के को लेट कंसिडर करना पड़ेगा, फिर पी के प्लस वन को निकालना पड़ेगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड को लेके, जैसे कि हम लोग यहाँ में किया था सिमिलरली इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को लेके पी के प्लस वन को निकालना पड़ेगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस वन दिखाना पड़ेगा। तो इतना टफ नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आज इसको अच्छे से देखो प्रोसेस को, और जो स्टेटमेंट मैंने दिखाया स्टेटमेंट को ये बुक में PDF दे दूँगा, तो इसका एक बार अच्छे से जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसको एक बार देखो, जो मैंने बोला इसको एकदम इजीली समझने के लिए ट्राई करना। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को एक बार रिमाइंड करके भी देख लेना। तो फर्स्ट P1 के लिए ट्रू है बोल के शो करना होगा, फिर हम लोग को कंसिडर करना होगा कि ये के लिए ट्रू है, और इसका ऊपर डिपेंड करके हम लोग को शो करना पड़ेगा ये के प्लस वन के लिए भी ट्रू है, और अगर ये के प्लस वन के लिए ट्रू है तो ये सारा के लिए ट्रू हो जाएगा बाय द स्टेटमेंट ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, सो जो भी डाउट है वो बोलना। ओके, कमेंट बॉक्स होगा तो उसमें बोल सकता है। सो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स, और अगर मैं ट्राई करके देखना एक दो क्वेश्चंस, और क्या डाउट है मुझे मैसेज करना। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है समझने के लिए तो मुझे फ़ोन करना, तो मैं उसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम। थैंक यू स्टूडेंट्स। Tomorrow we will discuss in next class we will discuss remaining portion.